welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu, and we are here for class 8 Pirates today. And class 8 के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में, यानी लगातार एंटायर चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज रिवाइज्ड ओनली फॉर यू गाइज. ओके, सो आपके एग्जाम टाइम में जब भी आपको टेंशन होती है कि यार इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो इस वीडियो को रेफर कर लेना जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो, एंड यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट दैट what all formulas and concepts are there in this chapter. Okay guys, so yes, let's get started. Don't forget to like and share this video, and yes, if you are new to this channel, and do subscribe. Okay, chalo, let's get started. So what is there in this chapter basically? In this chapter we learned what is ratio and what is percentage. We have seen change in percentage. We will see discount, profit and loss, sales tax, simple interest and compound interest. These all are mainly related to your money transactions, right? And basically they all are used to compare how much you have bought, how much you are selling, and all of that, right? So let's revise each and every concept in a go, and I hope this will be useful to you. Number one, what is a ratio? Ratio हम कैसे कहते हैं? So जब भी हमें दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना होता है कि किसकी बड़ी वैल्यू है, किसकी छोटी वैल्यू है, या फिर हमें कंपैरिजन करना होता है कि एज कंपेयर टू दिस हाउ मच इज दिस. So for such type of things we will use ratio concept. It refers to the relationship between the quantities of two or more objects, and it indicates how many times one number contains the other number. And how do we write ratio? We write it like this: a colon sign b, which also implies a divided by b. Okay, so आप ratio को fraction में convert कर सकते हो like this. For example, the ratio of mango is to apple is 10:5. Means अगर 10 kg mango है तो 5 kg apple होगा. Like that you can compare, right? Next is percentage. So what is this percentage? रेशियो को कॉन्सेप्ट हमें कंपैरिजन करने में हेल्प तो करता है, बट बिटवीन टू क्वांटिटीज, व्हाट इफ देयर आर मेनी क्वांटिटीज, फिर आप कंपैरिजन कैसे करोगे? व्हाट इफ यू वांट टू कंपेयर कि आपके बेस्ट फ्रेंड के कितने मार्क्स आए, आपके कितने मार्क्स आए, और आपके क्लास के बाकी बच्चों के कितने मार्क्स आए. आपको अगर कंपेयर करना है तो आप सबका रेशियो तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वहां पे काम आता है परसेंटेज. व्हाट इज परसेंटेज? Percentage basically refers to a value out of 100. Means how much you have scored, how much you have got out of 100. So to generalize we use percentage, because you know sometimes math exam is of more marks as compared to, let's say, English exam, right? English exam 100 marks का पेपर था, but maths exam में 150 marks का पेपर आया था. बट हमें दोनों का कंपैरिजन करना है, तो आप बोलोगे कि इसका तो बेस बड़ा है, इसका बेस छोटा है, तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? सो फॉर दैट वी यूज परसेंटेज, एंड वी कन्वर्ट इट इनटू परसेंट. सेंट मतलब 100. सो हियर basically out of 100, whatever value you are denoting, we write it like this. This is the symbol used to denote percentage. And what is the formula for calculating percentage? The value which you have got out of total value multiplied by 100. जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, you have to multiply by 100. For example, 3/5, you have to convert it into a percentage. What will you do? You will simply multiply 3/5 with 100. What will you get? 5 ones are 5, 5 twos are 10, 3 twos are 6, 60%. Like that, we converted it into percentage, right? Now, similarly, just like we have converted a fraction into percentage, we can also convert a ratio into percentage. How will you do that? Well, ratio is nothing but fractions, right? जो हम ratio निकालते हैं, they are nothing but simple fractions. तो जैसे आपने fractions को percentage में convert किया, same to same आप ratio को percentage में convert कर सकते हो. What will be 6:5? 6:5 is 6/5. What is 6/5? 6/5 into 100 will get converted into percentage, that is
120%, सिंबल जरूर लगाना वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर परसेंटेज को रेशियो बनाना है तो उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। सो व्हाट इज 125%? 125% इज 125 डिवाइड बाय 100। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ठीक है। डिवाइड करो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, वो बन जाएगा रेशियो। दैट्स हाउ वी कन्वर्ट परसेंटेज टू रेशियो। Now, another very important formula related to percentage is percentage of increase and percentage of decrease. कई बार हम ऐसे सुनते हैं कि पिछले साल मेरी सैलरी इतनी थी, इस साल मुझे 30% का हाइक मिला, अब मेरी सैलरी इतनी है, मतलब मेरी सैलरी बढ़ गई, 30% से बढ़ी। तो ये 30% क्या है? जो पुरानी सैलरी थी, जो नई सैलरी है, दोनों का डिफरेंस, राइट। तो वो डिफरेंस परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसका फॉर्मूला है डिफरेंस, that is the final value minus initial value divided by initial value multiplied by 100. Always remember, if you are finding out percentage, you have to multiply by 100, right? So difference divided by initial value, क्योंकि चेंज आया है तो किस पे चेंज आया है? इनिशियल वैल्यू पे चेंज आया ना। हम बोलते हैं ना कि मेरी पुरानी सैलरी चेंज हुई, हम कभी ये थोड़ी बोलते हैं नई सैलरी चेंज हुई, है ना। तो पुरानी सैलरी पे कितना चेंज आया, मल्टीप्लाइड बाय 100 विल टेल यू परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। प्रमोशन होता है, डिमोशन भी होता है लोगों का, डिक्रीज भी हो सकती है सैलरी, राइट। तो दैट्स हाउ द चेंज इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। Next is a very famous term that we always hear when we go to shopping. डिस्काउंट, राइट। जब भी सेल लगी होती है हम शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल्स में सेल लगती है, शॉप्स में सेल लगती है, ग्रोसरीज में सेल लगती है। तो व्हाट इज दिस सेल? दिस सेल बेसिकली अलाउज यू कि जो भी आपकी एमआरपी है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है या फिर मार्केट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, उस पे छूट मिलेगी। छूट मिलेगी मतलब कुछ पैसा माइनस कर दिया जाएगा और आपको कम पैसे में खरीदने को मिल जाएगा, राइट। तो ये जो कम पैसे में हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, एंड द ओरिजिनल प्राइस इज कॉल्ड एज एमआरपी, एमपी, मार्क्ड प्राइस, राइट। एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। सो व्हाट इज डिस्काउंट? जो उसका इनिशियल वैल्यू था उसमें कितना अमाउंट हमने लेस कर दिया और फाइनल उसको सेल कर दिया, तो ये जो गैप होता है जो हमने लेस किया वही तो डिस्काउंट होता है। 20% का डिस्काउंट मतलब जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसका 20% माइनस कर दिया गया, तो बेसिकली आप 80% पे खरीद रहे हो उस चीज को, राइट। एंड दैट इज नथिंग बट डिस्काउंट। अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, द ओरिजिनल प्राइस दैट इज द लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी जो आप पे करते हो, राइट। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? हमेशा याद रखो, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो क्या उसकी वैल्यू है, मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट कितना है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑलवेज। तो डिस्काउंट का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है? एमआरपी। डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी। सो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी मल्टीप्लाइड बाय 100, that will give you discount percentage. Okay, so first calculate discount by finding out MRP and selling price. After that, divided by MRP multiplied by 100, you will get discount percentage. That's the simple concept of discount, है ना। everyday life में हम discount का concept use करते हैं, so it will not be difficult for you to understand, right? Next is cost price and selling price. Well, this is also something that we always do in our daily life. कितने पैसे में खरीदा, कितने पैसे में बेचा। ऑफ कोर्स हम बेचने तो नहीं जाते हैं, हम सेल तो नहीं करते हैं, बट मे बी अगर आपके फादर बिजनेसमैन हो देन दे विल डू इट, राइट। सो फॉर एग्जांपल, हमने एक सर्टेन कॉस्ट प्राइस में कोई चीज खरीदी। कॉस्ट प्राइस मतलब हमें कितना पैसा देना पड़ा था खरीदने के लिए। सेलिंग प्राइस का मतलब जब मैंने बेचा तो मुझे कितना पैसा मिला। सो कॉस्ट प्राइस इज लाइक आउटफ्लो, आपका पैसा गया। सेलिंग प्राइस इज लाइक इनफ्लो, आपका पैसा आपके पास वापस आया। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर ज्यादा पैसा दिया कम पैसा वापस हुआ तो लॉस होगा,
अगर कम पैसा दिया था ज्यादा पैसा आएगा तो प्रॉफिट होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सिंपल. सो ऑलवेज, अब यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट किसको बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस को या सेलिंग प्राइस को? टेल मी व्हाट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट? कॉस्ट प्राइस, राइट? बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज द अमाउंट जिसपे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ना, सेलिंग प्राइस पे थोड़ी हुआ. ओरिजिनल तो कॉस्ट प्राइस था ना, पहले तो हमने कॉस्ट प्राइस दिया था, राइट? So what will be profit? Profit कब होगा? When selling price is greater than cost price. So what will be profit formula? Selling price minus cost price. And what will be profit percentage? Again, what did I tell you? If you have to find out percentage, what you have to do? Take the profit divided by original value. What is the original value? Cost price. Multiply by 100 to convert it into percentage. So that will be profit percentage. Next, what is loss? Loss happens when पैसा ज्यादा दिया था, वापस कम पैसा मिला, है ना, तो हमारा पैसा लॉस हो गया. तो लॉस होगा when cost price is greater than selling price. So the formula of loss will be cost price minus selling price, and percentage of loss will be same, loss divided by original amount, that is cost price, multiplied by 100 for converting it into percentage. And these are the basic formulas. Remember these basic formulas and you will be able to solve any question. But if you want to directly solve the questions जहां पे profit percentage and loss percentage involve होता है without actually finding profit and loss, तो उसके लिए आप ये indirect formulas को भी याद कर सकते हो. For example, selling price कैलकुलेट करना जब कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज, फाइंड आउट, यूज दिस रिलेशन. If you want to find out cost price, use this relation when selling price and profit percentage is given. Again, selling price and loss percentage is given. Finding out the cost price, use this formula. By using these indirect formulas, you can calculate. But if you don't remember this formula, please go in the general way. पहले प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करिए. एक्स सपोज कर लीजिए, एक्स के साथ जब तक प्ले करना नहीं सीखोगे क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे. सो ट्राई टू प्ले विद द एक्स. ओके, इट विल रियली हेल्प यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, आपके यूज का नहीं है फिलहाल, वो है टैक्स. टैक्स आपके यूज का तब होता है जब आप जॉब करते हो, अर्न करते हो, और अर्न करने की वजह से गवर्नमेंट को पैसा पे करते हो. टैक्स होता क्या है? वॉट एवर वी आर डूइंग वी विल गेट अ सैलरी फॉर इट, राइट? ऑन दैट सैलरी सिर्फ हमारा हक नहीं होता, हमारे मम्मी पापा का हक नहीं होता है, गवर्नमेंट का भी हक होता है हमारी सैलरी पे, ठीक है? तो हम जो भी गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं उसके बदले हमें गवर्नमेंट को पैसा भी देना पड़ता है, जो इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा मनी दैट यू आर पेइंग एंड दैट इज कॉल्ड एज टैक्स. वो एक्स्ट्रा मनी कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आती है, आपके सैलरी से ही डिड्यूस की जाती है, मतलब माइनस की जाती है और गवर्नमेंट को दी जाती है, ताकि गवर्नमेंट हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जैसे कि फ्लाईओवर्स बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, और उसके लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देकर हेल्प करते हैं, राइट? सो इसी में से एक टैक्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स. ये वो टैक्स नहीं है जो हम डायरेक्टली अपनी सैलरी से दे रहे हैं, हम इनडायरेक्टली अपनी सैलरी से देते हैं. कैसे? जब हम बॉटल खरीदते हैं, जब हम चॉकलेट खरीदते हैं, जब हम कपड़े खरीदते हैं, तो जब भी हम कुछ खरीदते हैं अपने लिए, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कमोडिटी, देन वी पे एन इनडायरेक्ट टैक्स. आपने सुना होगा मैम 5% जीएसटी लगेगा, है ना? तो 5% जीएसटी क्या होती है? इट इज अ टैक्स, अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जब आप KFC जाते हो बर्गर खाने के लिए, तो आपने देखा होगा हमेशा नीचे होता है +12 रुपीज, +23 रुपीज, +44 रुपीज. जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है. व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा मनी? दिस एक्स्ट्रा मनी इज नथिंग बट VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं इनडायरेक्टली. जितनी चीजें खरीदेंगे उतनी चीजों पे. अब इस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेरी सिंपल. टैक्स किस पे दे रहे हो? मैंने अभी क्या बताया, KFC जाओगे, बर्गर खाओगे, टैक्स पे करोगे, तो टैक्स किस पे दिया? बर्गर पे दिया. बर्गर का जो प्राइस था उस पे दिया. एक बर्गर खाया तो 12 रुपए का टैक्स, 2 बर्गर खा लिया तो 12 + 12 24 रुपीज का टैक्स. मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? बर्गर पे डिपेंड कर रहा है.
नहीं, बर्गर के प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, राइट? सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द टैक्स विच यू हैव टू पे, द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एज टैक्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस. नाउ व्हाट इज दिस? टैक्स दे रहे हो, लेकिन हमेशा जीएसटी जब भी सुनोगे तो ये नहीं बोलते हैं मैम 12 रुपए जीएसटी लगे, आपको बोला जाएगा 5% की जीएसटी लगेगी. 5% किसका? सो 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. यानी एक बर्गर लिया तो एक बर्गर का कॉस्ट प्राइस, दो बर्गर लिया तो दो बर्गर का कॉस्ट प्राइस. सो व्हाट इज टैक्स? हाउ इट इज कैलकुलेटेड? सो व्हाट इज टैक्स? आई टोल्ड यू हाउ इट इज कैलकुलेटेड. Tax percentage of the CP. Like this you will calculate how much you have to pay to the government whenever you are buying something. और फाइनल बिल अमाउंट क्या होता है? जो आपको बिल मिलता है, सर आपका इतना बिल हुआ है, उस बिल पे क्या होता है? कितना खाया, उसके ऊपर कितना टैक्स दिया, उसको ऐड करके आपको हमेशा फाइनल बिल वैल्यू मिलेगी. एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट फॉर्मूला. जब आपको सीपी पता है, टैक्स परसेंटेज पता है और ओरिजिनल प्राइस निकालनी है टैक्स लगने से पहले, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस? जो कॉस्ट प्राइस बिना टैक्स लगे हमें पता थी, यानी बर्गर का जो प्राइस था वो हो गया ओरिजिनल प्राइस. ओके, नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? तो अभी तक बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी. डिस्काउंट जो हमें हेल्प करती है, महंगी, लाइक मनी रिड्यूस करती है बेसिकली हमारे लिए. टैक्स जो हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है. इंटरेस्ट अगेन इज द एक्स्ट्रा मनी जो हमें पे करनी होती है. व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा मनी? अब यहाँ पे हमें कुछ खरीदना या बेचना नहीं है, यहाँ पे हमें मनी जो हमारा पैसा है उसका बस ट्रांजैक्शन करना है. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बैंक में आपने अपना पैसा रखा है. क्यों रखा? घर पे रख लो. इसलिए रखा आपने क्योंकि उसके बदले बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा वापस करेगा. बैंक ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बैंक उस पैसे का यूज करके कोई और बिजनेस करता है, वहां से पैसा कमाता है, पैसे से पैसा कमाता है. तो उसी तरह जो पैसे से पैसा उसने कमाया उसका कुछ परसेंट वो आपको देता है, तो वो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, या फिर जैसे आपने बैंक से पैसा लिया है तो बैंक आपको क्यों देगा? है ना, इसलिए देगा क्योंकि बैंक का उसमें फायदा है. वो बोलेगा मैं तुम्हें 10,000 तो दे रहा हूं पर वापस 11,000 लूंगा, सोच लेना. और हम लेते भी है लोन, है ना, उसी को लोन कहा जाता है. तो इंटरेस्ट इज एन एक्स्ट्रा मनी विच वी पे ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट विच वॉज एक्चुअली देयर, राइट? सो interest is calculated in two ways: simple interest and compound interest. What is the concept of simple interest and what is the concept of compound interest? तो वेरी बेसिक सा एग्जांपल है. हमने बैंक से लोन लिया, सिंपल 10,000 रुपीज का. बैंक ने बोला ये 10,000 तुम मुझे 3 साल बाद वापस कर सकते हो, लेकिन इस 10,000 का 10% आई विल चार्ज फ्रॉम यू. ठीक है, 10,000 का 10% आई विल चार्ज फ्रॉम यू. तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000. कब उसको चार्ज करेगा? 3 साल बाद. यानी आपने 10,000 रुपीज लिया, 3 साल तक अपने पास रखा. ठीक है, वापस जब आप बैंक को करोगे तो आपको 10,000 प्लस 1,000 यानी 11,000 पे करना होगा. ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है? बैंक ने सेम चीज बोली, तुम मुझसे 10,000 लो और मुझे 3 साल बाद वापस करना, लेकिन हर साल तुम्हें मुझे 10% देना होगा. सिंपल इंटरेस्ट में हमने 3 साल के बाद इंटरेस्ट पे किया था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें हर साल वो इंटरेस्ट पे करना पड़ा. मतलब पहले साल के बाद 10% दिया, फिर 10% दिया, फिर 10% दिया हर साल. इस तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट हमें देना पड़ा बैंक को. ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा. ठीक है, so what are the terms related to interest when we are finding out interest? P is for principal. What is the principal? The loan amount that you are taking from the bank or giving to the bank. Rate of interest is always given in percentage. Just like I told you, bank will say you will return me 10% or I will give you 10%. So that is the rate of interest. That the interest will depend on this value, right? Because bank will never say you return me 1,000. No, they will say you return me 10% of whatever you are taking. 10,000, 10 lakh, 10 crore, whatever you are taking, 10% of that. Okay,
T is for time, means for how much duration you are taking the loan. Amount is the value that you will return to the bank at the end of your time limit. That means the principal plus the interest which they have charged. This will be the amount that you will return to the bank, right? So how will simple interest be calculated? Simple interest बहुत ही simple है. कितना पैसा लोन लिया था मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज उसी पे तो लगा है लोन, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, बिकॉज उतने साल के लिए आपने लिया था. PRT divided by 100 is nothing but simple interest. So P will be 100 into SI by RT, R will be 100 into SI by PT, T will be 100 into SI by PR. इसी फॉर्मूले को हमने 3 डिफरेंट वेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट? Next comes the concept of compound interest. What is compound interest? So, just like I told you, कि आपको डायरेक्टली 3 साल बाद इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है, हर साल वो इंटरेस्ट ऐड होता जाता है. तो ऑफकोर्स आप इतना दिमाग तो लगाओगे नहीं कि अरे यार 1 साल के बाद कितना हुआ, 2 साल के बाद कितना हुआ, 3 साल के बाद कितना हुआ. फॉर दैट यू डायरेक्टली हैव अ फॉर्मूला दैट एट द एंड ऑफ T टाइम लिमिट you have to return to the bank P into 1 plus R by N to the power of NT. P is the principal, R is the rate of interest, T is the time. अब ये N क्या है? N is कि एक साल को कितने पार्ट में आप ब्रेक कर रहे हो. Yes, मतलब कभी कभी बैंक ये भी बोल देता है कि तुमको हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना है, कभी कभी बोल देगा हर 4 महीने में इंटरेस्ट दो, कभी कभी बोल देगा हर 2 महीने में इंटरेस्ट दो. तो एक साल को कितने पार्ट में आप ब्रेक कर रहे हो? अगर हर 6 महीने में देना है, मतलब एक साल को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए ना, फर्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन. तो यहाँ पे अगर आप हर 6 महीने में इंटरेस्ट दे रहे हो तो एन की वैल्यू की जगह पे 2 आ जाएगा. ओके, सो दैट्स द फॉर्मूला. एज आई टोल्ड, अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, मीन्स एवरी 6 मंथ, देन time multiplied by 2, rate divided by 2. Quarterly means every 3 months, time multiplied by 4, rate divided by 4. Monthly means every month, then time multiplied by 12, rate divided by 12. So this is the formula. एक formula आप याद रखो, इसी formula से आप सारे formula derive कर सकते हो. That's how you will calculate the compound interest. Okay, so this is all that was there in this chapter, and I hope that all the concepts are clear to you. If not, then on this channel you will find detailed sessions of all the topics जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है. If still you are not able to understand this chapter, then you can definitely subscribe to Vedantu's pro classes, जहाँ पे हर दिन ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाया जाता है with unlimited live classes, right? You will get total fun live quizzes in every class जिससे आप प्रैक्टिस कर पाते हो. लाइव क्लासेस के साथ यू गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोज लाइव क्लासेस, सो दैट अगर आप लाइव क्लास मिस करते हो तो देन यू कैन लेटर ऑन सी द रिकॉर्डिंग एंड रिवाइज. यू विल गेट प्रीमियम डाउनलोडेबल नोट्स, हैंड रिटन मास्टर टीचर नोट्स एंड तत्वा बुक्स इफ यू एनरोल फॉर 1 year. नेक्स्ट, आपका हर एक डाउट भी सॉल्व किया जाता है इन एवरी सेशन, बिकॉज एवरी क्लास हैज लॉट ऑफ क्लास टीचर्स जो आपके डाउट सॉल्व करते हैं. यू गेट टेस्ट इन असाइनमेंट्स, यू गेट अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज विच आर एक्स्ट्रा क्लासेस. तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, अलग अलग टीचर से पढ़ लो. all of these options are available to you in the micro courses, and the whole subscription is very easy to enroll. ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में चले जाइए, वहां एक लिंक दिया होगा आपको फॉर CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड एंड महाराष्ट्र बोर्ड. क्लिक ऑन एनी ऑफ द बोर्ड जिसमें आप पढ़ते हैं, and please remember the coupon code SKPRO that will give you 10% discount, and you can enroll for 1 year at 24,299 and for 1 month trial at 1,890 by this coupon code. Okay, और अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट आते हैं तो आप डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप ले लो वेदांतु का, which will come in pro classic subscription, जिसका कॉस्ट है ये. एंड अगर आप चाहते हो कोई पर्सनल मेंटोर मिले जो आपको गाइड करे एंड आपके बेसिकली होमवर्क सॉल्व करने में, एग्जाम के प्रिपरेशन में, डाउट सॉल्व करने में हेल्प करे, देन यू कैन एनरोल प्रो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन. ओके गाइज, सो यस, एंड रिमेंबर
दैट इट्स नॉट लाइक कि आप ये कोर्स एनरोल करोगे और वेदांतु आपको भूल जाएगा। वेदांतु आपके पीछे पड़ा रहेगा और आपका स्कोर इंप्रूव करवा के रहेगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज एटलीस्ट आपकी 75% अटेंडेंस एंड 75% टेस्ट कंप्लीशन होना चाहिए। और अगर इसके बावजूद आपको एक साल बाद लगता है कि आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाया, देन वेदांतु विल रिटर्न योर एंटायर कोर्स फी बैक without any questions asked. Okay, so do subscribe to Vedantu Pro. The new batches are starting from next Monday. And yes, आज आप लोग के लिए एक स्पेशल टाइप का होमवर्क है। होमवर्क में आपको कुछ भी कमेंट करके नहीं बताना है। बेसिकली होमवर्क में आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ कि आपको एक चार्ट बनाना है ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज विच आर देयर इन दिस चैप्टर, एंड उस चार्ट को आपको अपने रूम में कहीं पोस्ट करना है, पेस्ट करना है, ताकि आप उसको देख देख के सारे फॉर्मूलाज याद कर सको। Okay, thank you so much for watching. See you all in the next session. Till then, take care. Have a nice day. Bye bye. Bye, guys.